All right, good morning, guys. So, new week, new start. Well, today we are going to actually complete the chapter. So, a start of the new chapter will be sometime maybe in the next lecture. All right, so आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दिया था रिगार्डिंग द concentration terms. Good. See, because अभी कैसा है ना, had you been in a class, तो I would have made surprise check. I would have seen your homework, and then I would have asked you to actually show me the written proof for it. Then some of you would have been lazy to not even do that in a separate notebook. अपनी अपनी बुकलेट में ही करते जा रहे होंगे. Then I would crack a same old joke of you being ऐसे a global warming freak saving paper. Man, मुझे आप लोगों की शक्लें नहीं पता यार, मतलब like that is something which is sometimes a little bothering. व्हाट्सएप पर तो फिर भी आप लोग डाउट्स पूछते हो तो थोड़ी बहुत शक्लें दिख जाती मुझे, अच्छा कि हाँ ये लोग मुझे बाद में देखेंगे. एनीवेज, सो हाँ, आई एम श्योर शीतम, यू आर रियली हैंडसम. या यार ऋषि, मतलब हम लोग वीडियो कैमरा नहीं ऑन कर सकते, मतलब देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ chaos. मतलब हम लोग करेंगे मे बी सम टाइम व्हेन वी आर in the mood to like fool around, not really enjoy the lecture as such, but to enjoy something different. Utsav, I did my engineering from chemical engineering, but उसमें ऐसा like chemistry जैसा खास कुछ होता नहीं है. This is something of a misconception among students कि chemical engineering है तो उसमें chemistry पढ़ाई जा रही होगी. Well, not really. Chemical engineering is in fact much more close to physics than actual chemistry. उसमें ऐसे heat transfer, fluid mechanics, mass transfer, ये सब पढ़ाते हैं. Reactions तो मतलब ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में ही होके खत्म हो जाता है, chemical reactions and all. Pooja, I'm not sure. As in, it may start somewhere in the month of September if it's a thing that is happening across the country, but completely depends upon how things are going to go. हाँ हर्ष, मैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर करूंगा. वेदांत, तुम मेरे इंट्रो सेशन में नहीं बैठे थे क्या? मैंने बताया था मेरा बैकग्राउंड बॉम्बे से. वेल, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में ओके, केमिकल इंजीनियरिंग इज समथिंग जिसका रिसर्च अपॉर्चुनिटीज रहता है, बट नॉट रियली मच इन इंडिया. जनरली स्टूडेंट्स गो क्रॉस फील्ड्स, मतलब अभी ऐसे हार्ड कोर केमिकल इंजीनियरिंग में तो यू नो देयर इज नथिंग मच दैट इज देयर when it comes to research. So what I found and what my friends have been into research is actually, a combination or a mix of different fields. So some actually venture into nanotech, some actually venture into bioinformatics. So it is something which comes to you
when you start understanding about the kind of research that is going on, जब आप लोग ऐसे colleges में या IITs में एडमिशंस लोगे, तो उसके बाद में मे बी इन योर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो खैर ऐसे ही निकल जाता है, just trying to understand what is happening around you, but second year onwards, yeah, you get into touch with the professors and become part of their projects, and you try to understand that which are the areas in which professors are researching, क्योंकि प्रोफेसर्स जिस एरिया में रिसर्च कर रहे होते हैं वो उसी एरिया के प्रोजेक्ट्स फ्लोट करते हैं, जिसमें both undergrad and postgrad students can help them in their research methodology. ओके, बहुत सारे एकदम क्वेश्चन आ गए हैं. Does IIT have a scope for astronomy? नीरव का क्वेश्चन है. Well, I don't think so. Astronomy as such is being taken as a separate subject in IITs. There is definitely theoretical physics that or students take, and there is engineering physics, but again those engineering physics, I don't think it crosses much with astronomy. So हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमी के लिए, हाँ हाँ, शिवांश हैज कम अप विद एस्ट्रोलॉजी, या उसके लिए मतलब यू डोंट नीड IITs, यू नीड अ स्पेशल स्किल सेट, यू नीड अ स्किल सेट ऑफ, इनफैक्ट उसके लिए तो तुम्हें MBA करना चाहिए, लाइक इनफैक्ट MBA भी नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजी आने लग गई तो उसके बाद तुम लोगों को MBA का ज्ञान बांट सकते हो, यू डोंट नीड एनी formal education, you can decide what is going to happen. So okay, Aditya is presenting a link that IIT Indore mein there is a dedicated department of astronomy. Yeah, apart from that, yeah, there are courses that might be run by other institutes, IISTs or IISCs. पलाश को बहुत चिंता हो रही है. पलाश इज लाइक, हाउ वुड द मेजर टेस्ट बी हेल्ड? पलाश, इतना मूड किल कैसे करते हो तुम यार? मतलब मैं जनरली सुबह सुबह थोड़ा सा मूड लाइटन करना चाह रहा हूँ, इन द सेंस थोड़ा सा नींद खुले. आई एम प्रीटी श्योर दैट तुम में से भी आधे लोग ऐसे जस्ट नींद से उठ के आ जाते हो, नहाते धोते भी नहीं हो. सो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ. आई जस्ट वोक अप सम टाइम बैक, डिड अ ब्रश एंड जस्ट केम लाइटिंग अप द मूड, ताकि हाँ मुझे याद है कि आज क्या पढ़ाना है. और तुम हो कि मुझे मेजर टेस्ट के बारे में पूछे जा रहे हो जाएगा यार तुम्हारा मेजर टेस्ट, टेंशन मत लो, ऑनलाइन हो जाएगा. एंड उसमें व्हाट वी विल आस्क इज दैट योर पेरेंट्स, उनको हम लोग बोल देंगे कि वो पीछे बैठ के तुम पर चेक रखे, सो दैट यू डोंट फूल अराउंड. आएगा आएगा, सब मिल जाएगा, तुम लोगों को सारा डिटेल्स मिल जाएगा. ऑल राइट, सो चैतन्य का क्वेश्चन है, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट वो क्या है, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो आगे जाके इम्पोर्टेंट हो जाता है. Chaitanya was like, do you feel all the trouble you went through giving JEs, was it really worth it? Well, of course, like no matter whichever field you choose or whichever task you put into, मतलब be it academics or non-academics, आप अगर उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, उसमें एफर्ट नहीं डालोगे, तो you will truly not do justice to the task that you have taken up, right? In fact, this is something that मैंने आपको ओरिएंटेशन के टाइम पे भी बताया था, that like even if you talk about a singer who has a naturally talented voice, but tab bhi they enjoy the process of doing riyaz for over 8 to 10 hours a day, matlab repeat the same rags, those same classical overtones, and
trying to get better each time, even the smallest of the achievements they thoroughly enjoy. And that is true with the other skill sets as well, right? कोई क्रिकेट खेलता है तो लाइक इट इज द सेम थिंग ना, आपको वही बैटिंग बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, थ्रो करना है, बट don't these people enjoy? Of course their you know glamour is a little different, not little different but a lot different, because they have an audience. आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपकी डीपीपी को सॉल्व करते हुए देखने के लिए कोई ऑडियंस नहीं है. So that is something which becomes different from domain to domain. All right, so हाँ ठीक है, मतलब आप लोगों के क्वेश्चंस की बाढ़ खत्म ही नहीं होती है. Yeah, I can understand. हाँ, एब्सोल्युटली पूजा, मतलब अभी आप एफर्ट डालते जाओ एंड यू कैन you will find that even if you get into NITs and bits तो competition कम नहीं है. मतलब sometimes this comes out as a common क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स कि सिर्फ IIT जाना है क्या, बिट्स NIT इन सब में नहीं जाना है क्या? इनफैक्ट उनके लिए भी बहुत एफर्ट है. मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कंपटीशन कहीं पे भी लेस है. मतलब यू आर गोइंग टू कम्पीट विद द सेम पूल ऑफ गाइज, सेम पूल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दीज कॉलेजेस एज वेल. सो एफर्ट तो आपको डालना ही डालना है. ऑल राइट, सो ठीक है, आज के क्वेश्चंस यहीं पे होल्ड करते हैं एंड धीरे धीरे हम लोग चीज़ें और डिस्कवर करते जाएंगे, हाउ टू वर्क, हाउ टू मेक श्योर थिंग्स आर इन राइट प्लेस. अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. इनफैक्ट एज अ क्विक रिकैप, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोलारिटी, मोलालिटी एंड इस बैच पे मैंने एक्चुअली मोल फ्रैक्शन भी कर दिया था. ठीक है, I was not able to do mole fraction in the other two batches. तो ठीक है, हम लोग मोल फ्रैक्शन वाले एग्जांपल से ही कंटिन्यू करेंगे. एंड इफ आई रिमेंबर, the example that I had shared in the last class was regarding the glucose aqueous solution. So it was something of this nature, that mole fraction of glucose in its aqueous solution is 0.1, right? And ऐसा दिया गया था information, if the density of solution is 1.2 gram per ml, then determine the molarity and molality. Now इंटरेस्टिंगली कई स्टूडेंट्स ने मुझे इसके सॉल्यूशंस भेजे, काफ़ी लोगों का मैच भी करा, कुछ लोगों के फनी सॉल्यूशंस भी थे. सो एंड इनफैक्ट दैट हैपेंस समटाइम्स in general class as well, that students do this thing, they actually assume two things. So जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, राइट? सो starting step used to be that we take the denominator of given concentration term as 1, right? तो यहाँ पर जो given concentration term है वो मेरे लिए mole fraction है, right? So I will start with, say, let the moles of glucose plus water, ठीक है, aqueous solution है तो यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगा that solvent जो है वो water है, ठीक है. And based on that, ठीक है, डोंट कॉल इट दैट लेट द मोल्स ऑफ सोल्यूशन बी इक्वल टू 1, ठीक है. हम इस चीज को ऐसे मोल्स ऑफ सोल्यूशन नहीं बोलते, ये मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में ही बताया था.
that you should simply write it as moles of glucose plus moles of water, that is equal to 1. ठीक है. Now यहाँ पे notice करना, since mole fraction of glucose is given as 0.1, so this implies moles of glucose is 0.1 and moles of water is equal to 0.9. ठीक है, ये समझ में आया? बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, एंड टोटल मोल्स आपको दिया हुआ है, अब दिया हुआ है नहीं है, इनफैक्ट हमने वैसे स्टार्ट करा कि 1 है, तो उससे मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1 आ गए एंड मोल्स ऑफ वाटर 0.9 आ गया. ठीक है. नाउ द थिंग इज दैट the funny thing that happened was that one of the students gave the solution in which they said that let the volume of water be 1 liter. ये करने के बाद में एक और बार let the कर लिया, let the volume. So this is not something which you can do. मतलब आप एक बार स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, बट आप दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते एंड उससे फिर आप नहीं रिपोर्ट कर सकते. जैसे लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 1 लीटर बोल दिया और फिर मोल्स तो 0.1 पता ही है, तो मोलारिटी 0.1 रिपोर्ट कर दी. सो दिस समटाइम्स हैपन, मतलब आई एम श्योर दैट देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये चीज करा होगा. सो यहाँ पर ऐसा मत करना दैट डू नॉट assume more than one starting point. ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा. मतलब ऐसे तो लेट द आंसर ही कर लो ना आप सीधे, लेट द आंसर भी 0.1. सो ये गड़बड़ नहीं करनी है. नाउ कमिंग बैक, हमें क्या क्या चाहिए था. नाउ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1 आ गए, तो हमारा मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों का न्यूमरेटर तो आ ही गया है. ठीक है, अब डिनोमिनेटर के ऊपर वर्क करना है. ठीक है, डिनोमिनेटर, so let me first talk about molality. ठीक है, let me first talk about molality. Molality is moles of solute upon mass of solvent in kg. अब moles of solute तो 0.1 आ ही गए हैं, यहाँ से सीधे as it is. ठीक है, अब सॉल्वेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है. एक्चुअली सॉल्वेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से है कि हमें सॉल्वेंट के मोल्स पता पड़ गए. तो उसका मास कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 18, राइट. मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है, राइट. एंड ये सब ग्राम्स में आ जाएगा. सो आई विल डिवाइड इट बाय 1000 टू गेट द मास इन केजी. Right, so this is going to give you the molality. अच्छा, अब मैं मोलारिटी पर आता हूँ. ठीक है, मोलारिटी के लिए नोटिस करना, I have the same approach, moles of solute upon volume of solution in liters. ठीक है, न्यूमरेटर तो मेरा ठीक है समझ में आ गया है, 0.1 हमने ऊपर फिगर आउट कर लिया था. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए नोटिस करना, दिस विल बी मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. ये मुझे क्यों स्ट्राइक किया, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का डेटा दिया हुआ है, राइट. अब अगर मास ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करूं तो दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को मैं ऊपर लेके चला जाता हूं, राइट. सो 0.1 इंटू, अब यहाँ पर आप मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ऑब्जर्व करना. तो चलो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ साइड की जगह. अब आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे समझ में आ रही है कि 0.1 मोल सोल्यूट का था एंड 0.9 मोल सॉल्वेंट का है. सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट 18 आपको पता है, ठीक है. एंड सोल्यूट यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट
This is molecular weight of glucose 180. This was molecular weight of water and density आपको दिया हुआ है कितना था 1.2 ग्राम पर ml. ठीक है, ये एक्चुअली मास ग्राम में आएगा और ये डेंसिटी ग्राम पर ml में है. तो एक्चुअली यहाँ पर एक छोटा सा आपको वॉल्यूम को यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये लीटर्स में आ जाए. ठीक है, बिकॉज ये ml में आएगा डिनोमिनेटर में वॉल्यूम. ठीक है, तो ये एक फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट वॉल्यूम इन लीटर्स. सो इसके बेसिस पर अब आपका आंसर आप सॉल्व करोगे तो you get some answers. Now थोड़े से calculation intensive answers है. I think if I remember last class में मोलारिटी आता है कुछ 3.508 मोलर. ठीक है, and this molality was something which came out to be 6.172. ठीक है, अच्छा श्रीतम कह रहा है दैट 10 की पावर -3 से नहीं ना श्रीतम, ये देखो ना यहाँ ये ग्राम और ग्राम कटा, ये ml डिनोमिनेटर में आया. ठीक है, ये ml डिनोमिनेटर में था एंड ml को मैं क्या लिखूंगा लीटर अपॉन 1000. राइट, ml को मैं ऐसे लीटर अपॉन 1000 लिख दूंगा ना, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा. समझ में आया? मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया था, डायरेक्टली 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था. All right, so this was something which was the question based on the discussion that we did in last class, molarity and molality के ऊपर, जहां पर अब इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया था. ठीक है, नाउ यही क्वेश्चन को एक्चुअली आप लोग डिटेल में भी कर सकते हो बाय स्टार्टिंग विद वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 आप स्टार्ट विद वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बस थोड़ा सा और एग्जॉस्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको. The easier observation is that the easier way to do these questions is that starting step should be taken as the denominator of the given concentration term. It makes calculation much easier. ठीक है, and then उसके बाद जो second aspect मैंने आपको बोला है is deal with the numerator and denominator of whatever being asked separately. तो चीजें सोचने में थोड़ी सी आसान हो जाती हैं. ठीक है, all right. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कराता हूँ, फिर उसके साथ में आपको एक और एग्जांपल दूंगा. ठीक है, सो ट्राई करेंगे. दिस फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, दीज आर एक्चुअली परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. दीज आर समथिंग जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट स्टिल आई वुड एलैबोरेट ऑन देम फॉर एवरीवन्स बेनिफिट. सो इसमें भी तीन हम लोग पढ़ते हैं. देयर इज परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, विच इज डिफाइंड एज weight of solute upon weight of solution into 100%. So this is same as percentage by mass. ठीक है, this is also you can say percentage by mass. Then you have percentage weight by volume. So here you have weight of solute in the numerator and volume of solution in denominator. इसमें यूनिट्स का खास ध्यान रखना.
मास जो रहेगा सल्यूट का वो ग्राम्स में लेना है, एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लेना है वो ml में ही लेना है, ठीक है, या फिर केजी और लीटर में ले लो, बट इन्हीं यूनिट्स में रखना. That is the definition of it. And then there is also something defined as percentage volume by volume, ठीक है. This is in fact defined for liquid solution, ठीक है, not for something like salt in water या sugar in water, for something like ethanol in water, ठीक है, जहाँ पर solute solvent दोनों liquid है, तो वहाँ पर sometimes percentage volume by volume भी यूज करते हैं, ठीक है. वेट बाय वेट के यूनिट्स में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कंसिस्टेंटली अगर ऊपर ग्राम ले रहे हो तो नीचे भी ग्राम लेना वेट बाय वेट के केस में, ठीक है. मतलब ये एक्चुअली वेदांत का डाउट था कि यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या यूनिट लेना है. अगर आप ऊपर किलोग्राम ले रहे हो तो नीचे भी किलोग्राम लेना, ऊपर ग्राम ले रहे हो तो नीचे भी ग्राम लेना, ठीक है. जस्ट यूज द सेम यूनिट्स, एंड इन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यू कैन अगेन इसका डेफिनेशन जो रहेगा दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है. सो इसमें भी अगर आप ऊपर ml में ले रहे हो तो नीचे भी ml में लेना, एंड लीटर्स में ले रहे हो तो फिर दोनों ऊपर नीचे लीटर्स में ही लेना, ठीक है. नाउ ओके, शिवांश का डाउट है दैट कैन वी यूज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर गैसेस. वेल एक्चुअली देखा जाए तो मतलब टेक्निकली स्पीकिंग तो यूज नहीं करना चाहिए, बट समटाइम्स यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पर यू नो यू माइट हैव अ मिक्सचर ऑफ गैस, एंड उसमें आपको कॉम्पोजिशन दे देंगे, ठीक है, दैट देर आर टू गैसेस इन द मिक्सचर which are say 50% या 60% 40% by volume, ठीक है. तो whenever that kind of composition is given for gases ना शिवांश, आप उसको हमेशा बाय मोल्स की तरह ट्रीट करो, ठीक है, भले ही बाय वॉल्यूम की तरह दिया हुआ है, बट ट्रीट इट बाय मोल्स. ओके, रक्षित का क्वेश्चन है सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. वेल यस, हाँ, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम्स चेंज हो जाएंगे, दैट्स ओके. ओके, कृष्णा का क्वेश्चन है डिनोमिनेटर इन द फर्स्ट वन शुड बी वेट ऑफ सॉल्वेंट. नहीं नहीं, वेट ऑफ सोल्यूशन ही है, ये सोल्यूशन ही है. यहाँ पर डिनोमिनेटर में इनमें सब में सोल्यूशन ही जा रहा है, और न्यूमरेटर में सब में सल्यूट ही है, ठीक है. तो इसमें ऐसे अलग से कुछ नहीं है. सो अभिनव का क्वेश्चन है अगर इक्वल मास में सल्यूट, इक्वल अमाउंट में सल्यूट एंड सॉल्वेंट है विच शुड बी कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट. अभिनव अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेना, ठीक है, जिसपे भी फिर एंड में आ जाए. तुम्हें आता है कि नहीं आता अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो? आई एम नॉट श्योर यार, मतलब तुम लोग बॉम्बे के पढ़े लिखे बच्चे हो, लाइक ट्रूली मिलेनियल्स. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस और नॉट. तुम लोग क्या करते हो इनी मीनी माइनी मो? आई डोंट नो, पता नहीं तुम लोगों को ये सब आता भी है कि नहीं आता है. आता है, चलो गुड गुड. आई होप यू नो द अक्कड़ बक्कड़, गुड. Anyways, now let me give a question on these concentration terms, ठीक है. इंटर कन्वर्जन का ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान से जाना एंड ट्राई करना वन गो में आंसर आए. सो 3 मोलर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है CH3COH. एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर है, हैज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर cc, ठीक है. Now determine everything that we have done. So determine
molality, determine the mole fraction of acetic acid, determine percentage weight by weight and percentage weight by volume of solution. ठीक है, ये सब डिटरमाइन करो. ग्राम पर सीसी, सीसी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब एंड ml इक्वल होता है, तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो दैट इट इज 1 ग्राम पर ml, और सॉरी 1.2 ग्राम पर ml. ठीक है, ट्राई करो. राइट, कुछ कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं. हाँ, मोलालिटी का सही दिया है आदित्य और आरव ने. नहीं मोहनीश, आपका मोलालिटी का आंसर तो सही नहीं है. नहीं नहीं, अभी स्टार्टिंग में ही सही आए थे. आरोही, आपने कुछ तो 1100 कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दिया. सो मोलालिटी का आंसर मैं बता देता हूँ. मोलालिटी का आंसर इज 2.5 मोलल. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. मोल फ्रैक्शन का नहीं, ओके माय बैड एक्चुअली. नहीं 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 नहीं, सॉरी, 2.5 नहीं, गड़बड़ गड़बड़, माय बैड, मैंने भी गलती कर दी. इट इज एक्चुअली 3/1.02, नॉट 1.2, और सॉरी 1.5. हाँ, सो या. मोल फ्रैक्शन का आंसर जिसका भी आ रहा होगा वो मतलब कुछ ऐसा आएगा, 3/3 प्लस 1020/18. ठीक है, मतलब मैं ऐसा भी फ्रैक्शंस को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ.
मतलब मैं फ्रैक्शंस में ही रहने दे रहा हूँ इस चीज को। तीन मोल है ना सल्यूट के ऋषि। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 आया कि नहीं आया आप लोगों का? देन this becomes 3 into 60 upon 1200 into 100%, and percentage by volume, wait, this becomes 3 into 60 upon 1000 into 100%. ठीक है, हाँ, so 15% and this is 18%. ठीक है, all right, so these were the answers. Now I hope students के match कर रहे हैं answers. What I'll do is I'll quickly work on these questions, discuss these questions. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना कैसे वर्क करेंगे इसके ऊपर। सिमिलर टू द लास्ट टाइम, आपको गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलारिटी। ठीक है, सो स्टार्टिंग स्टेप इज डिनोमिनेटर of given concentration term as 1. Right, so इस बार लेट से मैं वेरिएबल से ट्राई करता हूँ। ठीक है, लेट मी एक्चुअली डू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड आई विल शो वेरिएबल कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी इक्वल टू वी लीटर्स। ठीक है, मैंने 1 लीटर नहीं लिया, वी लीटर लिया है। नोटिस करना वो वी कैसे कैंसिल आउट होता जाएगा। अब जो जो आपको चाहिए आप उसके हिसाब से फिगर आउट करते जाओगे। ठीक है, अब सिंस यहाँ पर आपको मोलारिटी दे दिया है इज 3 मोलर, तो दिस इम्प्लाइज मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, moles of CH3COH is equal to 3 into V, right? And ये आपका मोलालिटी का न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, अगर इससे मैं मास भी निकाल के रखना चाहूँ, ठीक है, आगे काम आएगा ये, सही मुझे ये। सो ये मास ऑफ CH3COH विल बी 3 into V into 60 grams। ठीक है, 60 इज द molecular weight of CH3COH, आप कैलकुलेट कर लोगे। सो ये तो न्यूमरेटर के बारे में रहा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक और डेटा पॉइंट दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. So this implies mass of solution will be equal to volume of solution into density of solution. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1000 V ml। ठीक है, ml में कन्वर्ट कर लिया इंटू 1.2, तो ये ग्राम्स में आ जाएगा। सो इट विल बी 1200 V grams. नाउ नोटिस करना that this is mass of solution, and as you know that mass of solution is mass of solute plus mass of solvent, right? So this implies ये mass of solute तो हम लोगों ने ऊपर से निकाला ही था CH3COH का, this was 180 V. So mass of solvent comes out to be 1020 V grams, or you can say 1.02 V kilograms.
राइट। सो अब एक एक करके हम लोगों ने काफी सारा एनालिसिस कर लिया, हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का आंसर निकाल सकते हैं। मोलालिटी इज मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg। तो moles of solute was 3v, राइट। ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाले थे, moles of acetic acid 3v है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अभी यहाँ पे जस्ट निकाला 1.02 v kg में, तो ये v कैंसिल आउट हो गया। यू गॉट द न्यूमेरिकल आंसर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या पूछा था आपसे, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। तो ये अभी जस्ट निकाला था, ये मास ऑफ सल्यूट यहाँ पे निकाला हमने एसिटिक एसिड का 3 × V × 60, राइट। 3 × V × 60 एंड सोल्यूशन का अभी जस्ट यहाँ पे निकाला 1200 V। तो ये वापस V कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, एंड यू विल गेट दिस टू बी अराउंड 15%, right, and percentage weight by volume will be again mass of solute upon volume of solution। ठीक है, इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, मास ग्राम्स में लेना है एंड वॉल्यूम ml में लेना है। सो मास अभी जस्ट ऊपर जैसे लिखा वैसे लिख देंगे ग्राम्स में, एंड वॉल्यूम वाज v लीटर्स, सो v × 1000 ये ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये v अगेन कैंसल्स आउट एंड दिस कम्स अराउंड 18%, राइट। सो थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। This was one of the other questions on interconversion between concentration terms, right? Now जैसा मैंने लास्ट क्लास, इनफैक्ट नॉट लास्ट क्लास, मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशंस में आप लोगों को बोला था दैट स्टार्टिंग में a lot of students struggle with this। ठीक है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हाँ, मैं मोल फ्रैक्शन का भी करके बता देता हूँ यश, मोल फ्रैक्शन मैंने स्किप कर दिया गलती से, बट मैं बता देता हूँ, वो भी आ ही जाएगा अभी। सो जैसे मैंने लास्ट इसमें होमवर्क में आपको बोला था दैट जब आप इंटर कन्वर्जन कर रहे हो इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉशियस रहना है, थोड़ा सा आप लोगों को इसमें ना प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तब आपको ये अप्रोच क्लिक होने लग जाएगा। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर फास्ट एट पिकिंग दिस अप, सम स्टूडेंट्स माइट हैव पिक्ड दिस अप इन मे बी कपल ऑफ लेक्चर्स ओनली। ठीक है, a couple of examples only, but some students do require this to be solved by themselves। ठीक है, आप लोगों को क्लास में मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट खुद से सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलना, दैट इज समथिंग विच इज रियली रियली क्रूशियल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाला भी मैं निकाल देता हूँ। मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे नोटिस करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड ही पूछा है, तो दैट विल बी moles of acetic acid upon the total moles, which will be moles of acetic acid plus moles of water। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, सो ये हमारे 3v मोल्स आए थे, एंड वाटर का भी आपने देखा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट आया, ठीक है, 1020 v ग्राम्स, सो दिस विल बी 1020 v अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 18। तो उससे आपको वाटर के भी मोल्स मिल जाएंगे, तो यू गेट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन था, रिक्वायर्ड यू टू गो इनटू द डिटेल्स एंड कनेक्ट वेरियस डॉट्स। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कुछ बच्चों का ही आया होगा, काफी सारे बच्चों का नहीं आया होगा, सो रीवर्क ऑन द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास एंड इंश्योर कि आप खुद से भी ये बात ये क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है हाँ, मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, स्लाइटली बिट मोर डिफिकल्ट।
ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जोया का क्वेश्चन है, सर मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल सोल्यूशन होता है, नॉट सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ होल सोल्यूशन। ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट मी गिव वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन मैंने आप लोगों को बोला है कि यू शुड नॉट ट्राई टू मग अप द फॉर्मूलाज। थोड़ा थोड़ा आप अप्रोच से सीखोगे तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये ऐसा प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह वर्क नहीं करेंगे, ये आपका 2016 का एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, बुकलेट में भी है, but let's try to work on it here itself. Let's see how you are able to work on this. So question है, mole fraction of a solute in a solution is 0.1। ठीक है, solute नहीं बताया, solvent नहीं बताया, बस इतना बोल दिया that mole fraction of solute in solution is 0.1। then उसमें और information कैसा दिया है, that at 298 Kelvin molarity of this solution is same as its molality, is same as its molality, मतलब दोनों का वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम क्या बोलूं, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, then additional information that is given is that density of solution at 298 Kelvin is 2 gram per ml। ठीक है, 2 gram per cc। determine the value of molecular weight of solute upon molecular weight of solvent। ठीक है, इंटीजर आंसर आएगा, तो आप लोग कोशिश करो। ठीक है, टेम्परेचर का इसमें कुछ यूज नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है, टेम्परेचर इज जस्ट एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन कि ठीक है टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, तो डोंट कंसिडर एनी काइंड ऑफ वॉल्यूम चेंजेस और एनी थर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन, इट इज ऑल बीइंग मेजर्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, पूजा का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इनका एप्लीकेशन कहाँ पर आता है। सो दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लास एज वेल पूजा, बिकॉज दिस कम्स एज अ नेचुरल क्वेश्चन after learning so many concentration terms and kind of banging your head with these interconversions, it comes as a natural question कि क्यों इतना करना है, मतलब सिंपल सिंपल चीजें क्यों नहीं रख रहे हैं, why these variations and all. So the thing is that these concentration terms become very convenient to use in future chapters जहाँ पर we work with particular type of questions and particular type of situations। जैसे आप बाद में एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें सॉल्यूशंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आपने एसिड का सोल्यूशन मिलाया, बेस का सोल्यूशन मिलाया, रिएक्शन हुआ, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सोल्यूशन मिलाया, रिड्यूसिंग एजेंट का सोल्यूशन मिलाया, रिएक्शन हुआ। तो सोल्यूशन में जब स्पीशीज प्रेजेंट होता है तो उनके अमाउंट का कैलकुलेशन बिकम्स मच इजियर विद दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, आप नोटिस करोगे आगे। देन आगे उसके भी आगे एक और चैप्टर रहेगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनके साथ में एसोसिएटेड कैलकुलेशंस करनी होगी, तो उसमें हमें टेम्परेचर सेंसिटिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलालिटी यूज करना पड़ेगा, which is temperature insensitive। So you will come across these applications but not immediately, थोड़े टाइम बाद।
ओके, सो जोया का क्वेश्चन है कि सर सॉल्वेंट स्पेसिफाई नहीं करा है, सो कैन वी टेक इट एज एट वाटर? वेल नॉट रियली जोया, आप नोटिस करो ना, क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर वेट अब्सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या कर रहे हो, आप डिनोमिनेटर अज्यूम ही कर रहे हो ना अपनी तरफ से। आप तो बोल रहे हो कि सॉल्वेंट मैं वाटर मान के उसको डिनोमिनेटर को 18 पुट कर देता हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ आरुष का और आदित्य का आंसर आ रहा है। ठीक है, विभव थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। आप शौविक नहीं, आपका भी आंसर सही नहीं है, आप भी चेक करो। नहीं यश, नॉट करेक्ट। हमें, हाँ हमें आपका सही आया आंसर। कृष्ण, ध्रुव, आकाश सही आंसर है। विनय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मुदित, हाँ मुदित आपका भी आंसर सही है। आरव, रेसिप्रोकल आंसर है आप, सही जो है। यश, हेत नहीं, आयुष नहीं, हाँ आरोही आपका सही आंसर आया है। ऑल राइट, सो काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दे दिया है। द करेक्ट आंसर इज 9, 9:1, दैट इज द रेशियो दैट कम्स। ठीक है, सो ओके, सो श्रीतम का एक क्वेश्चन है दैट इज इट अ थिंग टू वरी अबाउट इफ यू डोंट गेट सच क्वेश्चन? वेल नॉट रियली, मतलब आप एक सिंगल क्वेश्चन के बेसिस पर जज नहीं कर सकते। एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग फेज है यार, मतलब सो ओके, लेट मी टेल यू माय स्टोरी अबाउट हाउ इट happened with me as well. And I actually struggled with the starting phase a lot. So I'll tell you how it worked for me. I did my coaching from Bansal classes. ठीक है, Bansal classes back in 2006. ठीक है, it was in Kota. Now बंसल क्लासेस उस टाइम पर इतना ऐसे यू नो इन डिमांड कोचिंग क्लास था कि बंसल क्लासेस खुद का टेस्ट रखते थे। ठीक है, एंड जैसे यहाँ पे पेस में होता है ना, पेस में द टेस्ट इज मोर लाइक स्कॉलरशिप टेस्ट, कि आप स्कोर करो तो आप स्कॉलरशिप मिलेगी। योर एडमिशन इज एनीवेज गारंटीड, मतलब अगर आपको पेस में एडमिट होना है तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू एंड से कि नहीं नहीं हम आपको नहीं लेंगे। बंसल में ऐसा होता था दैट बंसल यूज्ड टू से नो टू स्टूडेंट्स, दैट आई एम गोइंग टू टीच ओनली दिस मेनी स्टूडेंट्स, and if they clear my test then only I'm going to admit them, otherwise they can go somewhere else. That is how it was the case, and in fact उस time पर बंसल classes was actually at its prime। मतलब जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, आई रिमेम्बर द स्टेटिस्टिक्स, उस टाइम पर जेई में कुछ 4500 से 5000 के बीच में ही सीट्स थी। ठीक है, अभी तो खैर आईआईटीज बढ़ गए हैं, बट उस टाइम पर 4500 to 5000 was the all India number of seats. And Bansal classes from Kota itself gives around 1600 selections. So that was the cloud। मतलब उस साल तो रैंक 1 भी आया था जिस साल मैंने पास आउट किया था Bansal क्लासेस से। So मतलब the thing was that it was highly competitive there, and the thing was that when I entered into Bansal classes तो मैंने वही entrance examination दिया था, एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्चुअली मैंने अच्छा क्रैक कर दिया था, क्योंकि मैंने क्या है ये एनटीएससी और एसटीएससी और इन सब की प्रिपरेशन के लिए भी कोचिंग करा था इन क्लास 9th एंड 10th। एंड ऑल्दो मेरा एनटीएससी वगैरह में नहीं हुआ था,
मतलब I did spend a lot of time in unnecessary indulgences at that point in time. तो NTSC एक्सेट्रा में तो नहीं हुआ, बट मैंने प्रिपरेशन किया था, तो उसकी वजह से मुझे बंसल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो फिर भी मतलब काफ़ी अच्छा गया था, एंड आई एक्चुअली एंडेड अप इन बैच 1। ठीक है, वहाँ पर ऐसे P1 P2 P3 इस तरीके से बैच बनते थे 11th क्लास में। 12th क्लास वॉज A1 A2 A3, 11th क्लास वॉज P1 P2 P3, सो आई एंटर्ड इनटू P1। ठीक है, अच्छा स्टार्ट मिल गया था, बट स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंड वाज दैट आई स्ट्रगल्ड सो मच। मतलब अब मेरे साथ साथ पूरे इंडिया के टॉपर्स आके बैठ गए उस क्लास के अंदर। ठीक है, मतलब मैं तो मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो मतलब ऐसे लकी शॉट था वो, मेरा जो एंट्रेंस पेपर था वो लकीली अच्छा चला गया था, बट ऐसा नहीं था दैट आई वाज अ कंसिस्टेंटली ग्रेट परफॉर्मर। मतलब मेरा 10th बोर्ड का परसेंटेज में अगर आपको बताऊं तो आप लोग बोलोगे कि व्हाट, मतलब आई स्कोर्ड 84% इन माय 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। अ लॉट ऑफ इट हैड टू डू इन हिंदी, मतलब मेरे को 67 नंबर आए थे हिंदी में। सो लाइक माय साइंस एंड मैथ्स वाज स्टिल प्रीटी गुड, इट वाज हिंदी दैट ब्रॉट मी डाउन, बट आई वाजंट समवन मतलब जिसका ऐसे स्टार्टिंग से बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस था। ठीक है, तो बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छा हो गया था, एंडेड अप इन बैच 1, एंड बेस्ड ऑन दैट मेरा आगे का पढ़ाई जो हुआ इन द P1 बैच वो सब एकदम टॉपर्स के साथ में हुआ, एंड दे वर सो फास्ट इन टर्म्स ऑफ कैचिंग एंड देन सो फास्ट इन टर्म्स ऑफ रिप्लाइंग। मतलब आई फेल्ट एकदम भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे आई रिमेम्बर ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कराते थे एंड 2D में कैलकुलेशन करना होता था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, एंड आई यूज्ड टू स्ट्रगल सो मच। मतलब स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मेरे ऐसे निकले थे दैट आई वाज लाइक स्टिल ट्राइंग टू कैच अप कि चल क्या रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर दैट मेनी स्टूडेंट्स राइट नाउ हियर आर आल्सो इन अ सिमिलर पोजीशन, बिकॉज एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है ऑफ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे फाउंडेशन वाले कोर्सेज करके बैठ जाते हैं, तो दे आर एबल टू गिव आंसर्स क्वाइट फास्ट एंड काइंड ऑफ गिव अ complex to the other students. So this starting phase is something which becomes a little challenging for a lot of students, and that is where I would request you to maintain that patience। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत आया था, बट देन धीरे धीरे आई अंडरस्टूड द प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा जो पढ़ाई है जेई का, इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस विच यू विल हैव टू अडॉप्ट टू। it would require you to actually spend dedicated time into studies and spend more hours, solve more questions as compared to what you used to do in your board examinations। यहाँ पर अभी एक टिपिकल मतलब डे अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, तो यू शुड, जिस दिन क्लास है, ठीक है, क्लास है तो क्लास तो खैर 1.5 आवर के 3 सेशन हो ही रहे हैं। आप प्रैक्टिकली यू कैन टेक 5 to 6 आवर्स आप लोग क्लास के टाइम पे ही पढ़ रहे हो। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जिस दिन क्लास है उसके बाद भी मिनिमम मतलब 4 घंटा 5 घंटा तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए ऑन द डेज व्हेन देयर क्लासेस। ठीक है, उसके बाद में जब नेक्स्ट डे लेट्स से जिस दिन क्लासेस नहीं है, उस दिन अगेन यू शुड डेडिकेटली स्पेंड सम गुड 7 to 8 आवर्स इनटू स्टडिंग। ठीक है, अभी एक्चुअली आपके ऊपर इतना वर्कलोड है नहीं। ठीक है, अभी मतलब इफ आई गिव यू एन इंडिकेशन, आप लोगों का वर्कलोड कुछ भी नहीं है। लाइक यू आर गिवन एकदम बेसिक बेसिक असाइनमेंट, यू आर गिवन बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, तो आप लोगों को अभी ज्यादा बिजी नहीं करा जा रहा है। ठीक है, एंड दैट विल बी द केस फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स इन ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स धीरे धीरे ही प्रोग्रेस कराए जाते हैं, बाद में आपका वर्कलोड थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाएगा, एंड एक्चुअली आप लोगों को खुद को भी मतलब लगेगा दैट वी कैन डू मोर, बिकॉज अभी आपकी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेच करा जा रहा है। यू आर बीइंग आस्क्ड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वर्क टुवर्ड्स मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोर डिफिकल्ट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट क्वेश्चंस। सो
अभी पढ़ाई का मतलब ऐसा नहीं है कि बस बैठ के सामने रीडिंग कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं. यू हैव टू रियली सॉल्व क्वेश्चंस. मतलब जहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ पे आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ. लाइक you will struggle with the basics of how to even start. So that is something which is completely normal, and that is how you are going to get used to this methodology. ठीक है. सी केमिस्ट्री में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप केमिस्ट्री के लिए अलग से कुछ अभी पढ़ोगे. अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों का पढ़ने का तरीका, तीनों का पढ़ने का अप्रोच सिमिलर ही है. आपको जो क्लास में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप वापस से क्लास के बाद में उसका रिकैप करो, रिवाइज करो, रीडू करो, रिवर्क ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वर डन एंड डिस्कस्ड. ठीक है. मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. देन बी रेगुलर इन टर्म्स ऑफ द होमवर्क दैट इज बीइंग गिवन टू यू. ठीक है. इंश्योर दैट यू आर taking out time to cover all the doubts that you have. ठीक है. मतलब एंड में ऐसा सिचुएशन हो जाना चाहिए, ठीक है, दैट लेट्स से आपका मूल कंसेप्ट चैप्टर हो गया एंड आपका प्रिपरेशन भी आपके हिसाब से हो गया. तो in order to understand how well your preparation is, that if I ask you a question that मैं अपने क्लास नोट्स में से या फिर जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं, उनमें से मैं कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, ठीक है, डेटा घुमा फिरा के थोड़ा बहुत आपसे पूछ लूँ, आपसे वो क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा. ठीक है. इफ द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज विद अ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन यस डेफिनेटली डू दैट क्वेश्चन, देन आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है. अगर आपका आंसर है कि मे बी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे सब डाउट्स क्लियर हो गए हैं या मुझे सब क्वेश्चंस आ गए हैं, तो देन दैट मीन्स दैट अभी भी देयर इज lot of scope for improvement, lot of scope for you to cover up. ठीक है. And this is the question that you should ask yourself when completing chapters. ठीक है. एंड धीरे धीरे अभी आपको और क्वेश्चन से एक्सपोज करा जाएगा. ठीक है. अभी हम लोग लर्निंग कर्व बढ़ा रहे हैं, आपका वर्कलोड धीरे धीरे इंक्रीज भी करते जाएंगे. All right, so let me just quickly give the solution to this question. ये हमारा क्वेश्चन था. काफी स्टूडेंट्स का आंसर आया है, काफियों का नहीं आया है. ठीक है. जिन लोगों का आ गया है, ठीक है, एंड दे वुड वांट टू वर्क ऑन सम अदर क्वेश्चन, तो व्हाट आई कैन रेकमेंड, आप एक एक्सपर्टीज अटेनर का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. ठीक है. सो लेट मी आस्क यू टू डू, जिन जिन का आ गया है, ठीक है, जिनका नहीं आया है वो यहाँ पर फॉलो करना. जिनका आ गया है आप लोग बुकलेट में से एक्सपर्टीज अटेनर का क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लो. ठीक है. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. इट विल रिक्वायर यू, इट विल कीप यू एंगेज्ड, इट विल आस्क यू टू स्टेप बाय स्टेप मेथड में फॉलो करके टू गेट एन आंसर. ठीक है. जिनका आ गया है, जिनका नहीं आया वो यहाँ पर फोकस करो. मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज गिवन एज 0.1. ठीक है. एंड देन मोलारिटी बराबर बताया जा रहा है. सो what I can do is I can take the total moles equal to 1 as my starting step, right? That's how I have developed a methodology. Okay, I'm not into the formulas and all. So I'll start with let the total moles be equal to 1. Okay, so this implies moles of solute is equal to 0.1 and moles of solvent is 0.9. ठीक है. नाउ ये तो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया. अब दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट मोलालिटी एंड मोलारिटी आर सेम. ठीक है. मोलालिटी एंड मोलारिटी, तो यहाँ पर इफ आई इक्वेट द टू, ठीक है, तो न्यूमरेटर दोनों का सेम होता है.
moles of solute upon mass of solvent in kg, and this is moles of solute upon volume of solution in liters, right? So moles of solute तो anyways equal है, तो हमें क्या मिल गया, that mass of solvent and mass of and volume of solution are equal. Mass of solvent, ठीक है, in kg is equal to volume of solution in liters, ठीक है. अच्छा, now notice करना that mass of solvent will be, अब मुझे moles of solvent तो पता ही है, ठीक है, तो moles of solvent को मैं यूज करके mass of solvent की तरफ वर्क कर सकता हूँ. तो I can write this as moles of solvent into molecular weight of solvent, and because ये ग्राम्स में आता है तो मैं 1000 से डिवाइड कर लूंगा ताकि किलोग्राम्स में रिपोर्ट हो जाए, है ना. ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया. So this will be 0.9 into molecular weight of solvent upon 1000. ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया. अच्छा, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है. एंड यहाँ पर अभी नोटिस करना ये लीटर्स में चल रहा है. तो मैं एक चीज करता हूँ, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मुझे दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml, ठीक है. सो लेट मी यहाँ पे लीटर्स, एक्चुअली अगर मैं 2 यूज करूंगा तो ये मिली लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है. दिस इज 2 ग्राम पर ml, तो ये ml ऊपर चला गया, ठीक है. तो ml को मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा. कैसे करूंगा, आई विल यूज ml इज इक्वल टू लीटर अपॉन 1000, ठीक है. एंड यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन जो है दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. आरुष, एक्सपर्टीज अटेनर का क्वेश्चन नंबर 7. ऑलराइट, नाउ अब वापस से यहाँ पे नोटिस करना, ये 0.9 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स, sorry, mass of solute will be 0.1 into molecular weight of solute, and mass of solvent will be 0.9 into molecular weight of solvent upon 2 into 1000. तो इसको आप थोड़ा सा रिजेक्ट करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट था या सॉल्वेंट अपॉन सोल्यूट था, molecular weight of solute upon molecular weight of solvent will come out to be 9/1, ठीक है. हाँ, आई एम श्योर, मतलब देर आर easier ways, more interesting ways, जैसे for example Aditya is saying that he had solved it in a more simpler way. Yeah, definitely you can, not a problem, आ जाएगा. चाहिए तो आप मेरे साथ अलग से ऐसे ग्रुप पर इनफैक्ट आप अपना सोल्यूशन शेयर करो, if you have a quite a convenient solution for this, shorter solution for this. ठीक है. So let me zoom out a bit. जिसको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था, आई होप अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है. कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यू विल फाइंड, मतलब अगर आपने फॉर्मूला रटने का भी कोशिश किया होगा तो फॉर्मूलाज आरंट गोइंग टू बी ऑफ मच हेल्प,
You will have to really think through the approach, connect the dots. ठीक है. ऑल राइट. सो इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई थिंक एक और जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा ही था इसका. बुकलेट में नहीं होगा वो, इफ आई रिमेम्बर. ठीक है, मैं ढूंढता हूँ. टिल द टाइम let me ask you to work on one more question, slightly trick question hai. Determine the mass of water. Okay, density of water दिया हुआ है 1 gram per ml required to be added to required to be added to चलो सिंपल रखते हैं कैलकुलेशन. 1 mole of CuSO4.5H2O to make 1 molar concentration of Cu2 plus ions. ठीक है, आंसर बताओ. वन के जी और 1000 grams इज नॉट करेक्ट. आप गलती कर रहे हो. हाँ ऋषि. ओके, स्वर का आंसर हाँ सही आ रहा है. कॉपर के मास की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आर्यन. स्वर ने आइडेंटिफाई कर लिया व्हाट वाज द trick in the question. आकाश नहीं, सही नहीं है. हाँ, आदित्य का सही आया, आदित्य आचार्य का. अमेय का भी सही आ रहा है. सो इसमें द कैच इज दैट यू विल हैव टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट ना दैट सॉल्ट हाइड्रेटेड है, उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली पानी में जाके मिलेगा. So what I mean to say here is
दैट ये जो .5H2O है ये भी पानी में एड अप हो जाएगा ना, सो दिस एड्स टू सॉल्वेंट, राइट। अब आपको यहाँ पर नोटिस करना कैसा चाहिए, 1 मोल CuSO4.5H2O implies 5 moles of H2O, that is 5 into 18 equal to 90 grams of H2O already है, ठीक है। So this implies for 1 molar concentration of Cu2 plus ions we need volume of solution, ठीक है, we need volume of solution to be equal to 1 liter, 1 liter or 1000 ml, ठीक है। सो अब बिकॉज, और यहाँ पर क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, सो मास ऑफ वाटर required comes out to be 1000 grams, ठीक है, but we already have 90 grams H2O जो कि बाद में सॉल्वेंट में ऐड ही हो जाएगा, तो दिस implies additional H2O added should be just 1000 minus 90, that is 910 grams, ठीक है। Of course this question goes with an assumption that solute dissolve हो रहा है, ठीक है। So that is something which is when we concentrate talk about concentration terms, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको कि कितना आपको पानी डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। Arush, I am not sure about your question because I have not really solved it yet. तो मैं देख के बताता हूँ बाद में, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना ये क्वेश्चन, ठीक है। I'll try to answer that doubt there. ओके विनय, यहाँ पर देखो आपने स्टार्टिंग में जो गलती करी होगी, जो एक कॉमन केयरलेस मिस्टेक सब कर रहे हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है और 1 मोल सोल्यूट है, ठीक है। तो आंसर कर देंगे कि 1 लीटर वॉल्यूम होना चाहिए सोल्यूशन का, मतलब 1 लीटर वाटर डालना चाहिए, एंड 1 लीटर डालने पर you will understand that you will have 1000 grams of water, but मैंने यहाँ पर आपको इसीलिए एडिशनल हिंट बताया दैट जो सॉल्यूट है हमारा वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है जो कि सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगा, ठीक है। सो दिस इज द कैच इन द क्वेश्चन। तो जो आप 1000 ग्राम्स डालने वाले थे उसमें 90 ग्राम्स ऑलरेडी है आपके पास में, तो आपको एडिशनली सिर्फ 910 ग्राम्स डालने की ही जरूरत है। यू डोंट नीड टू एक्चुअली पुट entire 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो उससे क्या हो जाएगा और डाइल्यूट हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। सो आई थिंक एक कॉमन सा ट्रिक था जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ऑल राइट, एडवांस्ड का क्वेश्चन, यार वो एडवांस का क्वेश्चन कहाँ पर गया, मैं भी एक्चुअली आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा था, नॉट श्योर, बट ठीक ठीक है। प्योर कंसंट्रेशन टर्म से ना क्वेश्चन आना बहुत रेयर चीज है कि सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म से ही आ जाए कोई क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली लास्ट ईयर पूछा था, ये देखो मिल गया, लेट मी आस्क दैट हेयर, ये लास्ट ईयर का ही है 2019 का, लेट्स सी, ट्राई करो
मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया वापस से, वैसे तो देखो दिया नहीं है बट पता होना चाहिए। और अभी तो खैर आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यूरिया आपको अभी पता होगा, बट बाद में काफी जगह आएगा ऑर्गेनिक में चैप्टर जब आप करोगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in its aqueous solution containing 900 grams of water is 0.05, ठीक है। If density of solution is 1.2 gram per cc, molarity of urea solution is, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है, डेसिमल प्लेस में भी हो सकता है आंसर, ट्राई करो। एंड एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक दो, ठीक है। डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ कैलकुलेटर और एनीथिंग, कंसिडर दिस लाइक एन एग्जाम क्वेश्चन, एंड आपको 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट आंसर देना है, ठीक है। तो इंक्लूड दैट इन योर एफर्ट एज वेल। सानिध्य, वो जो एक्सपर्टीज अटेनर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आई थिंक 85% है, आप लोग बुकलेट में भी देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। एंड अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है मुदित, लाइक वो 7th क्वेश्चन टाइम लग जाएगा, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, मतलब वो मैंने बस आप लोगों को एंगेज करने के लिए दिया है, बिकॉज लाइक यू, if you have solved a question and then you have time to rather use it in discussing something of a more difficult question. हाँ आरुष, आपका आंसर सही है, गुड। ठीक है गाइस, पेशेंटली, मतलब सी यू विल गेट वन ऑप्शन टू, यू नो, जस्ट वन शॉट टू गिविंग द करेक्ट आंसर्स, तो चाहिए तो डबल चेक करो बिफोर यू रिपोर्ट योर आंसर, ये कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको एग्जाम में पर क्वेश्चन आराम से 3 मिनट के ऊपर मिल रहा है इन एडवांस्ड एग्जामिनेशन, सो टेक योर टाइम, recheck the calculation if you want. डेसिमल में आंसर दो। आरव, आपका आंसर सही नहीं है।
ठीक है, इस केस में वापस से अब आप नोटिस करना, मतलब ऐसा मत करना दैट आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया है यूरिया का, एंड अब आप टोटल मोल्स 1 मत मान लेना डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्योंकि आपको वाटर का डेटा दे दिया है ना 900 ग्राम्स है, तो आपको वो फर्स्ट लाइन में ऑब्वियस कॉन्ट्रडिक्शन टाइप्स दिख जाएगा कि अरे, मतलब लेट मी अज्यूम टोटल मोल्स एज 1, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसमें वाटर का एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है कि इतना उसका एग्जैक्ट मास है। Alright, so the correct answer is 2.98. ठीक है, एंड इनफैक्ट इसका आंसर की है कि नहीं है मेरे पास में, बट आई थिंक 2.97 से लेकर 2.99 तक या 2.98 तक ही आंसर का रेंज एक्सेप्ट किया गया था। लेट मी जस्ट सी अगर इसका आंसर का भी है। 2019 में ही था ना ये, 2019 जेईई advanced paper solutions. Let me check the official answer key as well. I think official answer key पहले तो uploaded थी यार, I think I have not downloaded it. पिछली बार IIT रुड़की ने कराया था ना। Not sure. ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है मुझे, बट आई थिंक 2.97, 2.98 एंड 2.99, आई थिंक यही 3 आंसर एक्सेप्ट किए गए थे, 3 आंसर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस का एक्यूरेसी मांगा गया था, तो उसमें 3 एक्सेप्ट नहीं किया था, 2.97, 2.98 एंड 2.99. आई थिंक दीज वर द 3 आंसर्स दैट वर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे आप, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, गोज इन द सेम मैनर दैट आपको वाटर का मास दिया हुआ है, mass of H2O is given to you as 900 grams. So इससे moles of H2O आपको पता पड़ जाएंगे, 900 divided by 18, which is going to be 50, right? And mole fraction of urea will be equal to moles of urea upon the total moles, which is moles of urea plus moles of H2O. ये आपको दिया हुआ है 0.05. So इससे moles of urea आपके आ जाएंगे, if I do a quick calculation, तो 50 into 0.05 upon 0.95. ठीक है, ये moles of urea आ जाएंगे आपके। तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया ऑफ मोलारिटी। अब डिनोमिनेटर के लिए वर्क करना है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी
mass of solution upon density of solution. Mass of solution is mass of solute plus mass of solvent. अब मास ऑफ सल्यूट जो है वो यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू 0.05 अपॉन 0.95 इंटू 60, ये ग्राम्स में आ जाएगा, एंड ये 900 भी ग्राम्स में ही है, और ये डेंसिटी भी 1.2 ग्राम्स में है, तो ये ml में आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 1000 करना मत भूलना ताकि ये लीटर्स में आ जाए। ठीक है, 50 इंटू 0.05 upon 0.95 into 60 plus 900 upon 1.2 into डिनोमिनेटर में 1000 है, तो ये लीटर्स में आ जाएगा। राइट, तो आपका डिनोमिनेटर भी आ गया। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज योर मोलारिटी। ठीक है, तो ये 2.98 मोलर, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, हाँ मुदित, मैं एक्चुअली इसका ऑफिशियल आंसर चेक करने लग गया था। आई डिडंट चेक ऑल द रिस्पॉन्सेज, बट मुझे मिला नहीं, थोड़ा सा वो टाइम लगेगा शायद ढूंढने में। पहले आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पर था क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पेपर डिज़ाइन करा था। इस साल आई थिंक आईआईटी दिल्ली डिज़ाइन कर रहा है, तो शायद लिंक्स शिफ्ट हो गए हैं, बट एनीवेज this is the case. So now I can safely say that we are done with the chapter. We have completed the concepts in the chapter itself. अब आगे की लर्निंग और क्वेश्चंस के थ्रू ही आएगी। धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन सीखोगे एंड क्वेश्चन से नए नए चीज़ें आपको समझती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मोल कंसेप्ट का जो थर्ड असाइनमेंट मैंने भेजा है उसमें देखा हो, तो उसमें अब कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, लाइक डाइमर ट्राइमर क्या होता है, कैसे होता है, आप धीरे धीरे फिगर आउट करोगे। सम थिंग्स आर देयर व्हिच यू लर्न फ्रॉम क्वेश्चंस देमसेल्व्स। सो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे एंड हम लोग डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट लाइकली आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसका बुकलेट आप लोगों के पास ऑलरेडी है। होमवर्क मैं आपके लिए ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कि आपको क्या क्या होमवर्क करना है अभी, एंड नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या क्या उसमें बेसिक्स रहेंगे वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता जाऊंगा। ठीक है, टेस्ट के लिए अभी रुक जाओ सुदीक्षा, मतलब इनफैक्ट what I have gotten instructions are actually to first get you to practice more. ठीक है, आई होप आप लोगों ने जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया था मैंने वो आप लोगों ने ट्राई करा एंड ऑनेस्टली आपने अपना असेसमेंट किया है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट अब मैं आप लोगों को एक दो और प्रैक्टिस टेस्ट भेजूंगा टाइम्ड मैनर में करने के लिए, स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर भेजूंगा ताकि आप टाइम्ड मैनर में इस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, एंड उनके भी अगर कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे डिस्कस करने के लिए तो वो मैं अलग से एक बार डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो लेट्स क्लोज द लेक्चर फॉर द डे। हाँ, स्टेप ऐप आप पूरा खत्म करो। ठीक है, मोल कंसेप्ट का। ठीक है, एटॉमिक का अभी रुक जाओ, एटॉमिक का वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल आपको मिल जाएंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल आस्क द मैनेजमेंट टू शेयर दोज विद यू। ठीक है, नहीं भी रहेगा तो भी आप स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स में फर्क नहीं पड़ेगा इतना, स्टार्टिंग के लेक्चर्स एकदम बेसिक होंगे, सो यू वुड नॉट रियली नीड बैकग्राउंड प्रिपरेशन फॉर इट। ठीक है, Arav, normality is something which I do not teach in this chapter because that requires an entire different discussion of oxidation state and N factor. तो नॉर्मेलिटी अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में मिल रहा है अभी तो आप उसको स्किप कर दो, हम लोग नॉर्मेलिटी बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं पहले नॉर्मेलिटी, बट आई डू नॉट वांट इट टू बी समथिंग जस्ट डन without going into the details of oxidation state and N factor calculations. ठीक है, all right, चलो, thank you guys, let's close the lecture for the day.